Students, welcome back to my channel. Today I will continue the rest portion of magnetism. So last class I already completed. So how the magnetic lines of force are arranged in a state conductor, clockwise, both in clockwise direction as well as anti-clockwise direction, as well as I discussed clock rule. Okay, so today I told you the rest part, that is electric motor. We have only DC motor, then in next class AC generator, then transformer. So today, before going to electric motor or DC motor, let us have some discussion about how a electric motor works, in which principle an electric motor works. First we should analyze force in a current carrying conductor. A current carrying conductor placed inside a magnetic field experiences a force. मतलब एक मैग्नेट का अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर रहेगा, इसमें एक फोर्स गिरेगा और इट विल स्टार्ट मूविंग. ओके, इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा. सो ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल. सपोज हम एक मैग्नेट रखें, इसका अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ रखें, हम देखें इसी में फोर्स डेवलप होगा. हम सोचे फोर्स डेवलप हुआ, तब हम इलेक्ट्रिसिटी दिए थे, तब ये मूव करने लगा कंडक्टर. ज़रूर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हुआ, बिकॉज कंडक्टर मूव हुआ. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर, because a motor is a device which converts electrical energy to mechanical energy. However, a generator is a device which converts reverse electrical energy ना मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किया जाता और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. ओके, सो फर्स्ट मैंने तुम लोग को बोला ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. सो अदर थिंग भी मैं बोलता हूँ, एक मैग्नेट का अंदर एक चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज inside a magnetic field is called Lorentz force. The force experiences on a charge which is placed inside a magnetic field is called Lorentz force. Since moving charge constitute current through a conducting medium like conductor, so a current carrying conductor inside a magnetic field experiences a force. Okay, so the magnitude of force is depends upon IBL. इसका मतलब the magnitude of current depends upon the strength of the current, strength of magnetic field B. I stands for current, B stands for magnetic field, and length of the conductor. So the force is directly proportional to the strength of the current, to strength of the field, and the length of the conductor. Now we will continue electric motor. We have DC motor. A motor is a device which converts electrical energy to mechanical energy. It is based on the principle that when a current carrying conductor is placed normally in a magnetic field, it experiences a force. So a motor is based on the principle that when a conductor is placed normally inside a magnetic field, it experiences a force. Okay, so then हम कहेंगे
the direction of the force can be found by Fleming's left hand rule. The direction of the force can be found by Fleming's left hand rule, or the direction of motion of the conductor can be found by Fleming's left hand rule. This one very important. Stretch your left hand in such a manner that the thumb, the index finger and the middle finger should be mutually perpendicular to each other. So इसी में unknown quantity motion of the conductor. If the middle finger represent the direction of current, index finger represent the direction of magnetic field, then the thumb represent the direction of motion of the conductor. ओके, तो अब हम लोग के पास दो नॉन क्वांटिटी था, कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर के लिए थंब रेस्पॉन्सिबल. तो दो नॉन क्वांटिटी, एक अननोन क्वांटिटी. सो वी विल नाउ स्टार्ट डीसी मोटर. So what is DC motor, on which principle this is works? I told you a motor works on the principle that when a conductor is placed normally in a magnetic field, then it experiences a force. Then the direction of the force can be found by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule states that stretch your left hand in such a manner that the thumb, the middle finger and the index finger should be mutually perpendicular to each other. If the middle finger represents the direction of current, then the index finger represents the direction of magnetic field, then the thumb will represent the direction of motion of the conductor. Okay, then we will start electric motor or DC motor. So sketch of a DC motor. Okay, this one very important. Horse. So this one strong magnet. Axle. This is armature coil. This one soft iron core. Okay.
स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ओके, दिस इज द डीसी मोटर। सो इसी में क्या होता है याद रखना, फर्स्ट होता है तो अब ये हॉर्स मैग्नेट, दिस शुड बी ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट which should have the capacity to create magnetic strong magnetic field inside the conductor, ना inside the माने coil। so this one the armature coil। तो इसका अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोल लेते ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर हैज गुड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो इसके बाद ये होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट पूरा कंप्लीट रिंग नहीं, स्प्लिट रिंग ऐसे आधा, ये 50% ये 50%। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के साथ दो कार्बन ब्रश जुड़ा जाता। एक्चुअली वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर तक जब इसी में फोर्स गिरेगा, एक चीज़ याद दिलाओ, जब इसी में करंट फ्लो होगा तब जरूर दिस वन बी दिखाई नहीं देता, दिस वन बी, ओके, ए बी सी डी। जब इसमें करंट फ्लो होगा, हम जानते हैं एक कॉयल या करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तब इसी में जरूर एक फोर्स गिरेगा। फोर्स गिरने पर which should be kept in a direction normal to the direction of magnetic field। तो ये BC और AD में फोर्स नहीं पड़ेगा, नहीं गिरेगा, AB और CD में फोर्स गिरेगा। तो फोर्स गिरने पर हम इसी में जो करंट फ्लो करेंगे, हम देखेंगे ये आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। घूमने पर ये कार्बन ब्रश नहीं घूमता, खाली यहाँ तक, वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर तक ये घूमने लगेगा। तो बाहर का सर्किट कांस्टेंट, ये जो घूमने के बाद क्या होता है, इसका नाम हम लिख देते S1, इसके नाम S2, इसका नाम दे देते B1, इसके नाम B2। हम देखेंगे तब इसी में फोर्स गिरने पर ये थोड़ी देर बाद वो ये भी चला जाएगा CD के पास, CD आ जाएगा AB के पास। सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉयल और कंडक्टर कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो ये जगह में स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर दैट, ऐसे। तो अब ये होता है मोशन ऑफ द current, direction of the motion of the current, direction of magnetic field। so force गिरेगा normal to the plane of the paper। so नीचे गिरेगा, force इस तरफ गिरेगा, ओके, इसका फोर्स इस तरफ गिरेगा। सो एज ए रिजल्ट इट विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जब हम यहाँ पे स्विच दे देंगे तब इसमें करंट फ्लो होगा, ए बी में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, सी डी में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। फ्लो होने के बाद बाई फ्लेमिंग्स, क्योंकि हम जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर और ए कॉयल व्हिच इज प्लेस्ड नॉर्मली इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तब ये दोनों ए बी और सी डी नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब इसी में फोर्स गिरा बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ए बी साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वो डाउन हो जाएगा, नीचे तरफ फोर्स आएगा, तब सी डी ऊपर तरफ होगा। ओके, फॉर द सेम इंस्टेंट वो जो 180 डिग्री टर्न करने के बाद ये देखो S1 S2 जगह में आ जाएगा। आफ्टर 180 डिग्री तो स्लाइटली गैप, थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद करंट फ्लो नहीं होगा, फिर इमीडिएटली बाय इनर्शिया फिर करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि इसका मोशन तो कभी बंद नहीं हुआ। तब S1 थोड़ी देर बाद S2 को आ जाएगा, S2 आ जाएगा S1 के पास। मैंने तुम लोग को कहा था B1 B2 कभी मूव नहीं होता, ब्रश
के साथ हमेशा वो च्यों ऐसे आवाज़ में वो सर्किट घूमने लगती, तब होने पर हमेशा ब्रश क्या होता तो हो जाता डिस्ट्रॉय हो जाता, इसीलिए हम कार्बन ब्रश को हमेशा चेंज कर देते। तब S1 और S2 स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर आफ्टर एवरी 180 डिग्री टर्न माने ये भी चला जाएगा CD के पास। ये भी का हाल वही हुआ, ये भी कहा भाई मेरा करंट तो आता था A से B तक, हम कहेंगे जब ये भी CD को आ जाएगा तब करंट आ जाएगा 180 के बाद B से A तक। तब ये ऊपर डायरेक्शन में AB में फ्लो होता था करंट, जब ये 180 टर्न के बाद यहाँ के पहुँच जाएगा तो करंट AB में डाउनवर्ड तरफ फ्लो होगा। ऐसे CD में पहले डाउनवर्ड में होता था, जब CD इस जगह में आ जाएगा मतलब S2 S1 जगह में आ जाएगा, S1 S2 जगह में आ जाएगा, तब CD में जो डाउनवर्ड होता था करंट, CD में अभी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। तब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ओनली स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर? The split ring commutator reverses the direction of current. So the split ring commutator is responsible to reverse the direction of the current. Okay, ये हो गया this one very important question. Neat labeled sketch के साथ फर्स्ट आएगा what do you mean by motor? State the principle on which the motor works. How can you find the direction of motion of the conductor inside a magnetic field? हम कहेंगे बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हो गया। इसके बाद नीट लेबल्ड स्केच ऑफ ए DC मोटर। तो DC मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार इसका जो मोशन हुआ ये भी थोड़ी देर बाद वो S1 आ जाएगा, S2 के जगह S2 आ जाएगा, S1 जगह AB CD जगह चला जाएगा, CD AB जगह चला जाएगा। तब इसी में AB में जो फ्लो होता था करंट अपवर्ड डायरेक्शन, तब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। CD में 180 डिग्री टर्न के बाद CD में जब डाउनवर्ड होता था 180 टर्न के बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, then so electrical energy will be converted to mechanical energy. Okay, so this is motor. Then ये complete. Then next thing, ये हो गया ways of increasing the speed of coil, speed of rotation of the coil। हम rotation of the coil को कैसे बढ़ाएंगे? The speed of rotation of the coil can be increased by increasing the strength of the current first, by increasing the number of turn। अगर number of turn हम बढ़ा दिए, by increasing the strength of the magnetic field। if a strong horse magnet is used, जितना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका मोशन इतना ज़्यादा रहेगा। ओके, सो टुडे इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीटेड। ओनली नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देन लेंज लॉ, देन इलेक्ट्रिक जनरेटर, then if possible I will also take in the same class that is transformer, then after the entire chapter will be completed. Okay, wishing you all the best. Thank you very much.